हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टॉपिक के अंदर पार्ट 15 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू 150। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 140 एमसीक्यूज। आई होप आपने उन वीडियो से लर्निंग हासिल की होगी। आज की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मुकम्मल देखिए। हमारे चैनल के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग के मुतालिक और पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स के मुतालिक काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। सो उन वीडियोस को भी लाइक करें, शेयर करें और अपनी कम्युनिटी के साथ इनको डिस्कस करें और अपनी कैपेसिटी डेवलप करें। बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम एमसीक्यू इन इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 15 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 टू 150। 141 says that what is the most suitable water for irrigation? Option A C1 S1, option B C2 S2, option C C4 S1, and option D C1 S4. So C is the correct answer for this question, which is C4 S1. 142. According to Lacey, a channel is said to be in regime if option A it flows in incoherent unlimited alluvium of the same character as that transported material. Option B its discharge is constant. Option C the silt grade and the silt change are constant. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। लेसी के जो थ्योरी है उसमें ये तमाम एग्जेप्शंस उन्होंने दी थी कि चैनल जो है वो रिजीम स्टेट में तब होगा इट्स जब उसका डिस्चार्ज कांस्टेंट हो, जब उसमें सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज भी कांस्टेंट हो, और उसके अलावा सेम करेक्टर दैट ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स हो, वो भी इनकोहेरेंट अनलिमिटेड एलुवियम फ्लो के साथ चल रहा हो। So all of these is the correct answer for this question, which is option D. 143. The incoherent alluvium is a soil composed of loose granular graded material which can be scurred with the same ease with which it is deposited. Option A is right. Option B is wrong. सो ऐसी सिल्ट जो सेम ईज के साथ रिमूव की जा सके जिस ईज के साथ वो डिपॉजिट हुई है, सो दैट इज कॉल्ड इनकोहेरेंट एलुवियम। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 144. The main cause of silting in a channel is option A non-regime section, option B inadequate slope, option C defective head regulator, and option D all of these. So all these are the characteristics responsible for silting in a channel. So all of these is the correct answer, which is option number D. 145. According to Lacey, the silt is kept in suspension due to the force of vertical eddies. Option B. The eddies are generated from bed and sides, both normal to the surface of generation. Option C. Vertical component of eddies generated from the sides will also support the silt. Option D. All of these. So all of these are correct. लेसी की थ्योरी में ये तमाम assumptions ली गई हैं। All of these is the correct answer for this question. Option number D. 146. The lessee assumed that silt is kept in suspension because of normal components of ADs generated from the option A bed only, option B side only, option C whole perimeter, option D none of these. So जिस तरह कैनेडी में हमने पढ़ा था कि बेड ओनली से उसने एज्यूम किया था कि एडीज जनरेट होती हैं, यहाँ पे होल पेरीमीटर, चाहे वो साइड्स हैं, चाहे वो बॉटम बेड है या वो दूसरी साइड है, तमाम पेरीमीटर रिस्पॉन्सिबल है सिल्ट के लिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 147. Lacey gave a relation between option A velocity of hydraulic mean depth, option B area and velocity, option C both A and B, option D none of these. So C is the correct answer, which is both A and B. 148. Which of the following is not a factor affecting the choice of irrigation method? Option A soil type, option B local weather patterns, option C type of crops grown, and option D the farmer's mood. Of course, the farmer mood is not a factor which affects the irrigation method. All other factors affects the irrigation method, like soil type जो होगी उसके हिसाब से आपने irrigation method को डिजाइन करना है या प्रपोज करना है। इसी तरह लोकल वेदर पैटर्न्स को भी आपने मद्देनजर रखना है, और टाइप ऑफ क्रॉप्स जो भी आपकी रबी खरीफ वगैरह में काश्त हो रही हैं उनको भी मद्देनजर रखना है। कौन सी
लीनियर क्रॉप्स हैं, कौन सी स्प्रेडेड क्रॉप्स हैं। सो इस हिसाब से आपने इरिगेशन मेथड्स को डिजाइन करना है। 149, द चैनल आफ्टर अटेनिंग इट्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्लोप will be said to be in dash regime. Option A, initial regime. Option B is final regime. And option C is permanent regime. Channel after attaining its section and longitudinal slope will be in final regime. So B is the correct answer for this question. 150. The Lacey assumed a trapezoidal section, cross section of a regime channel. Lacey assumed a trapezoidal section of a regime channel. Option A is yes, option B is no. So B is the correct answer. No, Lacey did not assume the trapezoidal cross section. So B is the correct answer for this question. So friends, this was part 15 of our ongoing video series on irrigation engineering, जिसमें mainly हमने Lacey की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन किया, उसके डिफरेंट एजम्पशंस को हमने देखा और उसके मुतालिक जुड़े हुए तमाम करेक्टरिस्टिक्स को भी हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने इरिगेशन मेथड्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन से इरिगेशन मेथड्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और किन फैक्टर्स की वजह से आपने इरिगेशन मेथड अडॉप्ट करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने और इसको जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम फर्दर एमसीक्यूज लेकर आएंगे आपके पास इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।